Good evening, sir. Very good evening. ओके, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? सर रीडिंग चल रही थी। आई थिंक सो चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, राइट? ऑनलाइन में दो तीन दिन ऑनलाइन हुआ था तो चैप्टर खत्म हो गया है, सिर्फ रीडिंग बाकी है। चलो फिर रीडिंग शुरू करो और आज चैप्टर खत्म कर देते हैं रीडिंग भी, और उसके बाद में नया चैप्टर लेते हैं। कहाँ से आगे था रीडिंग? टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। हाँ सर, वही से। चलो स्टार्ट करो। हाँ, uses of land without computable techno institutional changes have the pace of agriculture development, in spite of development of sources of irrigation. Most of the farmers in a large part of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. For a growing population, this poses a serious challenge. Agriculture, which provides livelihood for more than 50% of its population, needs some serious technical and institutional reforms. First, collectivization, consolidation of building, cooperation, and abolition of zamindari sector was given priority to bring about institutional reforms in the country after independence. Land reform was the main focus of our first 5-year plan. The right of inheritance had already led to fragmentation of land holding and necessitating consolidation of the holding. Next.
पोचमपल्ली। बोलो। पदयात्रा, पदयात्रा मतलब मार्च, पता चला? वो पैर से यात्रा करते हैं ना सब जगह पे पूरे इंडिया के अंदर, उसको पद यात्रा बोलते हैं। डिसीलरेटिंग, detrimental, colonization,
After globalization, particularly after 1990s, the farmers in India have been exposed to new challenges. Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, goods, and feeding our agricultural production have been able to compete with the developed countries because of highly subsidized agricultural export countries. Today, Indian agriculture market is touching growth. When agricultural producers and profitable stockers serve to be given to the improvement of the condition of minor and small farmers. The need evolution permits but today is under controversy. It is anything that we have all land declaration of cancer, crime, agriculture and energy biodiversity. The key word today is being revolution with genetics and genetics. In fact, organic farming is not in vogue. vogue today because it is practiced without factory made chemicals such as fertilizers and pesticides, and it does not affect environment in a negative manner. A few economic things that Indian farmers have a big future if they continue to rely on the voltage that grows smaller and smaller as the population rises. India's rural population is about 833 million, which depends upon 203 million hectares of agriculture and an average of less than half of hectare per person. Indian farmers should directly farm cotton just to identify. Similar in rural and reducing environmental degradation families. Because food, natural or flower vegetables are in the crop, like vegetable crop and growth, so the nutrient irrigation and plant. And so, India's diverse planting can be harnessed to a wide range of values. Okay, done. क्या vogue vogue मतलब ट्रेंडिंग, अभी ट्रेंड में चल रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है vogue। ओके, चैप्टर खत्म हो गया। किसी को कोई डाउट है चैप्टर के अंदर? नहीं, चलो तो फिर इकोनॉमिक्स लेके आए हो सब लोग, शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स सेकंड चैप्टर। ओके, सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी या तो फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, कई सारे नाम हैं। अब स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर एग्रीकल्चर, मैंने तुम लोगों को बताया है कि कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिससे इंडियन इकोनॉमी जो है वो चलती है। तब इंडियन इकोनॉमी चलती है मतलब कि उसका, जैसे कि हम लोग ने अभी चैप्टर में पढ़ा था जीडीपी, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस तरह से बनता है, तो इसकी फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है जो मैं तुम लोगों को बताऊंगा, P + G + I = सॉरी
प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, अब ये कंसेप्ट क्या है, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। तो सी का मतलब है गवर्नमेंट कंजम्पशन, मतलब गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करती है, ठीक है, और इन्वेस्ट करती है, जिसके वजह से वो हमारी जीडीपी रेशियो में आ जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ में जी मतलब कि प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब हमारे यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी है। ठीक है, मतलब जितने प्राइवेट लोग हैं उतने ही गवर्नमेंट भी है। तो गवर्नमेंट की भी बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है, फार्म्स है। ठीक है, उसी तरह से प्राइवेट की भी फार्म्स है, इंस्टीट्यूशन है, वो लोग भी कमाते हैं, ये लोग भी कमाते हैं। तो इस तरह से जी जो है वो प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है, प्लस आई मतलब कि यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर काफी सारे इन्वेस्टमेंट भी, अभी एक नया कंसेप्ट आया है एफडीआई का, अगर किसी ने सुना हो तो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि फॉरेन कंपनीज जो है वो क्या करती है, डायरेक्टली इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करती है। पर हालांकि कुछ कुछ सेक्टर्स में इंडिया ने अलाउ किया है 100%, कुछ कुछ सेक्टर्स में 50% अलाउ किया है, कुछ कुछ सेक्टर्स में 20% अलाउ किया है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे कि बाहर से कोई भी कंपनीज आती है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो ये जेगुआर है, ठीक है, जेगुआर इज अ ब्रांड ऑफ अ कार। ठीक है, उसी तरह से फॉक्सवैगन है, वो भी एक जर्मन कंपनी है। ठीक है, उसी तरह से रिनॉल्ट है, वो भी एक बाहर की कंपनी, जर्मन कंपनी है। फिर सुजुकी जापान की कंपनी है। ठीक है, ह्यूंडई कोरियन कंपनी है। ठीक है, तो ये सारी जो है वो बाहर की कंपनी है। अब खाने में आ जाते हैं, तो वो तो ऑटोमोबाइल्स में था। ऑटोमोबाइल्स में यहाँ पे इन लोगों ने 80 to 90% छूट दे रखी है कि आपको यहाँ पे अपने सेंटर्स बनाने हो तो आप बना सकते हो, आपकी प्रोडक्ट अगर यहाँ पे बेचनी हो तो बेच भी सकते हो। ठीक है, और साथ साथ में अगर प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे खोलने हो तो वो खोल भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे उनके प्रोडक्शन यूनिट्स भी है, और वो लोग ओपन फ्री मार्केट में बेच भी रहे हैं अपनी प्रोडक्ट सारी। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम रिटेल मार्केट में चले जाते हैं, फूड एंड बेवरेजेस के मार्केट में चले जाते हैं, तो हाल फिलहाल अभी आया है रिसेंटली स्टारबक्स। ठीक है, वो भी बाहर की। ठीक है, डोमिनोज पिज्जा वो भी बाहर का है, यूएस पिज्जा वो भी बाहर का है। ठीक है, मैकडोनल्ड वो भी बाहर का है। ठीक है, और एक चीज आने वाली थी पर हम लोगों ने वहां पे रोक लगा दी है, वॉलमार्ट जो यूएस की कंपनी है। ठीक है, जो ऐसा बोला जाता है वॉलमार्ट अगर यहाँ पे आ जाएगा तो उसके बाद में जितने भी मिडलमैन है यहाँ पे, वो सारे मिडलमैन कट ऑफ हो जाएंगे, वही सब कुछ बेचेगा, वही सब कुछ खरीदेगा सबके साथ, यहाँ गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं होगा बीच में। ठीक है, तो इसके वजह से मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही इंटरनल प्रॉब्लम्स थे, उसके वजह से वॉलमार्ट को अभी स्टॉप कर दिया गया है। पहले इनिशियल स्टेज पे ऐसा बोला जाता था कि पूरे इंडिया में 24 सिटीज में आएगा वो, पर अभी उस पर बैन लगा दिया, रोक लगा दिया। देखते हैं आगे 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 देखो क्या होता है फिर। ठीक है, तो इस तरह से सारी कंपनीज जो है वो इंडिया पर इन्वेस्ट करती है, पर कुछ कुछ जगह पे ऐसा है कि उन लोगों को 100% छूट दे रखी है, कुछ कुछ जगह पे ऐसा है कि कुछ 50% छूट देते हैं, या तो 20% या 40% या 30%, वेरी करता है कौन से वो रेंज में आते हैं या तो कौन से वो डिपार्टमेंट में आते हैं, उस तरह से। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 100% छूट दे रखी है रिटेल मार्केट, क्लोथ मार्केट। ठीक है, हम लोग ने आगे पढ़ा कि वी आर द नंबर 2 एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन एंड जूट। ठीक है, तो ये सारी कॉटन और जूट की वेराइटीज जो है वो फॉरेन कंट्रीज हमसे परचेज करके हमसे ही बनवाती है यहाँ पे, इसीलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला गया है। पहले सिर्फ 2 ही इंडस्ट्री थी, जब पहली बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था अराउंड 1857, एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था यूरोप में, तो उस टाइम पे सबसे पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी थी यूरोप में, और जिसका नाम आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक थी लिवरपूल और दूसरी थी मैनचेस्टर। ठीक है, तो यही इंडस्ट्रीज में ये सारा कॉटन जो है वो वहां जाता था और वहीं बन के वो वापिस यहाँ आता था। पर धीरे 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 जैसे जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पे दिन काटते गए, वैसे वैसे यहाँ भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, यहाँ पे भी बहुत सारी कॉटन इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी। आज की सिचुएशन ऐसी है कि जो भी कपड़ा हम लोग यहाँ पे बनाते हैं वही कपड़ा यहीं की मिल में बनता है, यहाँ यही ही उसका प्रोडक्शन होता है, मतलब शर्ट बनता है या टी शर्ट बनती है या जीन्स बनता है या कुछ भी XYZ, और वो बेंगलोर में टैग लगवाने जाती है और बेंगलोर से फिर वो यहीं के मार्केट में बेचते हैं, वो लोग अपना टैग लगाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो था वो कंसेप्ट क्या है, क्लोथ मार्केट में, रिटेल मार्केट में उनको 100% छूट दे रखी है, इसकी वजह से वो लोग कमाते हैं। ठीक है,
और एक बात करते हैं ये फूड एंड बेवरेजेस की, तो वहां पे उनको 50% छूट दे रखी है। तो वो लोग क्या करते हैं, यही की कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कि स्टारबक्स जुड़ी टाटा से, ठीक है। आप अगर कभी स्टारबक्स पे जाओगे तो वहां पे बाहर लिखा होगा एन इनिशिएटिव बाय टाटा, ठीक है। तो ये क्या है, कोलाबोरेशन, इसको बोलते हैं कोलाबोरेशन। वो लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्ट करने नहीं देते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक रास्ता पकड़ते हैं। कौन सा रास्ता, कि यहाँ की जो भी अच्छा सा बड़ा सा बिजनेसमैन होगा या इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, उसका सपोर्ट लेके वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। उसी तरह से जेगुआर, वो भी टाटा इनिशिएटिव है। लैंड रोवर, वो भी बाहर की कंपनी है, टाटा के साथ जुड़ गई है, ठीक है। मारुति सुजुकी, मारुति यहाँ की है, सुजुकी वहां की है, दोनों, ठीक है। अभी उन्होंने नया इनिशिएटिव शुरू किया, नेक्सा, ठीक है। तो ऐसी कई सारी कंपनीज जो है वो यहाँ पे, पहले रिनोल्ट आई थी, तो रिनोल्ट ने पहले महिंद्रा के साथ टाई अप किया था, उसके बाद में उसको छूट मिली और फिर वो अपने हिसाब से बनाने लगे। पर यहाँ पे इंडिया में कैसा है कि अगर आप फॉरेन कंट्री से इन्वेस्ट करते हो यहाँ पे, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका प्रोडक्शन यूनिट इंडिया के अंदर होना चाहिए, तो ही आपको यहाँ पे परमिशन मिलेगी। अगर आपका प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे नहीं है तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50% छूट दी जाएगी, अगर वहां से आप इंपोर्ट करके यहाँ पे बेचते हो तो, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट, वो आता है जीडीपी के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, इट इज इंटरलिंक्ड, ठीक है। यहाँ पे भी कई सारे लोग जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि टाटा जो है वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। फिर आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो भी इन्वेस्ट करते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े जो लोग सर होते मैं हैं, वेटिंग खास हूँ, तौर मेरे को पे एक बार एंड अदानी, कर दीजिए। अदानी है, अंबानी है, वो सारे लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि अभी अब आपने देखा होगा अदानी शांतिग्राम बना है, तो वो क्या हुआ, एक टाइप का इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो भी काउंट होते हैं इसके अंदर, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स मतलब एक्सपोर्ट और एम मतलब इंपोर्ट। अब इसको माइनस क्यों किया जाता है, तो जो चीज हम लोग बेचते हैं, सामने कुछ ना कुछ चीज खरीदते हैं, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ही हमको एक्चुअल फिगर मिलेगी कि कितना हमने बेचा और कितना हमने लिया, ठीक है। हाल फिलहाल जो इंडिया जो है वो क्या करता है, ग्लोबल मार्केट में अपना एग्री प्रोडक्ट बेचता है और सामने टेक्नोलॉजी लेता है। तो हालांकि देखा जाए तो एग्री प्रोडक्ट की कीमत जो है वो बहुत ही कम होती है, और हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं मशीनरी, टेक्नोलॉजी, तो इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती है, तो इसलिए वो हमेशा माइनस में दिखाएगा, ठीक है। तो अगर आप फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो ये पोर्शन जो है वो पूरा माइनस में होगा। और उसके बाद में 2005 के कांस्टेंट प्राइस पे ये जीडीपी फिक्स की जाती है। मतलब अभी 2021 चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर में अगर हम 2021 के प्राइसेस को लेके अगर हम कैलकुलेट करेंगे अपनी जीडीपी, तो वो नेगेटिव दिखाएगी, माइनस दिखाएगी, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो पॉइंट, जो साल जिसमें हमारा जीडीपी रेशियो जो था वो एकदम बूस्ट कर गया था, तो वो वाला जो फिक्स पॉइंट है वो लोग पकड़ लेते हैं और उस हिसाब से फिर वो कैलकुलेशन करते हैं आज की, ठीक है। इस तरह से हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट दिखती है कि भाई इस साल हमने 7% ग्रोथ किया, इस साल हमने 7.5% ग्रोथ किया, नेक्स्ट ईयर जो है हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भी हम लोग शायद 12% ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो चक्कर है वो चक्कर कहाँ से आता है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से आता है, ठीक है। अगर वो सेक्टर्स ही नहीं रहेंगे तो हम हमारी जीडीपी काउंट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो वहीं से शुरू होती है, पूरा इकोनॉमिक्स जो है वो वहीं से शुरू होता है, कहाँ से, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्लियर? ओके सर। यस, क्या क्या? हाँ, एक्चुअली वॉलमार्ट जो है वो इसको यहाँ पे बैन क्यों किया है, तो उसके काफी सारे रीजंस है। एक तो सबसे पहला रीजन तो मैंने तुम लोगों को बताया कि मिडिल मैन को काट देता है। मतलब वो क्या करेगा कि बड़ा सा मॉल है, ठीक है, उसके साथ उसके अंदर सारी चीजें हैं, और वो भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, 24 आवर ओपन स्टोर है। मतलब रात के 3 बजे भी वहां पे आप आइसक्रीम लेने जाओगे तो मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। तो टाइम जो है उसका बारिंग नहीं है वहां पे, ठीक है। और इतना बड़ा स्टोर है कि A to Z कमोडिटीज और सर्विसेज जो है वो वहां से तुम लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। जो यूएस में चलता है वही सिस्टम यहाँ पे चलाएंगे वो,
दूसरी चीज क्या है कि ये लोग मिडलमैन नहीं रखते। मतलब मिडलमैन का चक्कर क्या होता है कि सबसे पहला आता है मैन्युफैक्चरर, कोई भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, ठीक है। इसके बाद में आता है डीलर, मतलब वही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसका एक डीलर होगा, वो डीलर के पास कई सारे मैन्युफैक्चरर्स जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है रिटेलर, ठीक है। रिटेलर कौन होता है? जो हमारे यहाँ पे कभी कभी हम लोग कुछ ना कुछ चीज लेने जाते हैं बाजार में, ठीक है। तो ये जो बिग बाजार वाले होते हैं तो ये सारे रिटेलर बोले जाते हैं, क्योंकि वो बल्क में माल उठाते हैं। जो कोक की बॉटल्स होती है, पेप्सी की बॉटल्स होती है, वो अगर आप नॉर्मल शॉपकीपर में शॉप में यहाँ शॉपकीपर के पास शॉप में लेने जाएंगे तो वो 55 रुपीज की मिलेगी। वही चीज अगर आप रिटेलर के पास लेने जाओगे या तो बिग बाजार में या ऐसे कोई स्टोर में लेने जाओगे स्टार बाजार में, तो वो 35 रुपीज में मिलेगी। क्यों इतना वेरिएशन क्यों है? क्योंकि वो लोग बल्क में उठाते हैं और शॉपकीपर्स जो है वो 3-4 बॉटल्स या 10-15 बॉटल्स उठाते हैं, या तो एक कैरेट उठाएंगे, उसके ऊपर उनको इतना डिस्काउंट नहीं मिल पाता, इसलिए वो एमआरपी पे बेचते हैं। और रिटेलर्स वो होते हैं जो एमआरपी से भी वो लेस करते हैं, ठीक है। इसके बाद आएंगे शॉपकीपर और लास्ट में आएगा कंज्यूमर। अब ये तो सर, मैंने अर्बन की बात की, रूरल की बात करते हैं तो शॉपकीपर के बाद में शॉपकीपर यस शॉपकीपर सर शॉपकीपर रिटेलर से खरीदता है तो फिर वो तो वही प्राइस में खरीदेगा ना, 35 में ही खरीदेगा ना। नहीं एमआरपी से, हाँ वो तो 35 में खरीदेगा, तुम लोगों को बेचेगा कितने में? 55 में। ओके। अब यहाँ पे क्या होता है रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में जहाँ पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है, यही फैसिलिटीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब पूरे विलेज में, पूरे गांव में अभी तो खासे मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट हो गया है विलेजेस एरिया में, मतलब रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट हो गया है। तो काफी सारे शॉप्स वहां पे भी होती है। मतलब पहले के जमाने में क्या होता था कि एक बंदा साइकिल लेके घूमता था और वो ठेला लेके वो साइड में लगाया हुआ होता था, उससे बेचता था। तो दे आर द मिडल मैन, तो इनकी भी कमाई कमाई हो जाती थी। वो शॉपकीपर के पास से खरीदते थे और अंदर 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 गांव के अंदर अंदर कोई भी चौराहे पे या कोई पे खड़ा रहेगा वो बंदा, और वहां के जो भी लोकलाइट्स होंगे वो लोग क्या करेंगे, उनके पास से खरीदेंगे। मतलब उसके ऊपर भी वो एमआरपी के ऊपर भी वो अपना हिस्सा लगा के फिर वो बेचेगा। तो ये जो पूरा चक्कर है, ये चक्कर वॉलमार्ट निकाल देता है। कैसे? यहाँ पे वॉलमार्ट है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को डील करेगा वो, मतलब कि बीच का पूरा खत्म। अब ये खत्म हो गया तो समझो हमारी इकोनॉमी जो है वो डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लोग इससे खरीदते हैं, ये ज्यादा पैसे में बेचता है तो टैक्स बढ़ता होगा। इसके बाद में इसको बेचा तो ये भी ज्यादा पैसे में खरीदता है, इसको बेचेगा तो टैक्स बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट यही टैक्स बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। अब सोचो कमाई सब ये ले जाएगा, ये इन लोगों की जितनी भी कमाई होगी वो सारी यही ले जाएगा, पता चला। तो इस चक्कर में वो लोग ना बोलते हैं कि नहीं वॉलमार्ट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो इंडिया है उसके अंदर जो सिस्टम है, ये सारी जो सिस्टम हमने बनाई है वो सिस्टम के अंदर हमें छेड़खानी नहीं करनी। क्लियर? पता चला। ये बिग बाजार या स्टार बाजार वाले क्या करते हैं, वो लोग रिटेलर्स है तो वो क्या करते हैं, डीलर से लेते हैं। वो मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाएंगे, वो डीलर के पास जाएंगे। अच्छा कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाते हैं। जैसे कि टाटा है तो टाटा ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाए। अगर उनके स्टार बाजार में अगर जाओगे तो क्लोथ्स मिलेंगे, तो क्लोथ्स वो अपनी कंपनी के होते हैं, अपनी वो पूरा बनाते हैं। जैसे कि पेंटालून है तो पेंटालून आदित्य बिरला इनिशिएटिव, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी बनाई हुई है उनकी इंडस्ट्री, वहां पे वो बना के फिर बेचते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट। अब वॉलमार्ट का दूसरा चक्कर क्या है कि हमारे यहाँ पे जैसे कि सिस्टम ऐसा है कि कोई भी बाहर की कंट्री आती कंपनी आती है, बाहर की कंट्री की कंपनी आती है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो पार्लियामेंट के अंदर उसका डिस्कशन होता है और वो डिस्कशन होने के बाद फिर उनको बताया जाता है कि आपका ये डिसीजन हुआ है, तो उस हिसाब से एफडीआई अगर आप कर रहे हो तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है
उसके अंदर आपको इतना परसेंटेज आपको इसके साथ मिलके सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अब वहां की पार्लियामेंट में क्या होता है, यूएस की पार्लियामेंट में, कि अगर कोई भी चीज आपको मनवानी है तो आप डायरेक्टली कोई भी एमपी को पकड़ के उसके साथ सॉल्यूशन करवा सकते हो। ठीक है, वहां के पार्लियामेंट ये है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वहां पे। अब यहाँ पे पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर वो डायरेक्ट कोई भी एमपी को पकड़ के अगर कोई सेटिंग करेगा तो इट विल बी एन इलीगल एक्टिविटी। ठीक है, और जो हमारी यहाँ पे चलता नहीं है वो, तो इसी के वजह से मतलब वॉलमार्ट ये करना चाह रहा था, इसी की वजह से उसको अभी स्टॉप कर दिया है कि अभी आपको नहीं आना है, हम देखेंगे जो सिचुएशन है। और तीसरी कंडीशन उनके सामने ये रखी है कि जिस तरह से बिग बाजार चलते हैं, जिस तरह से स्टार बाजार चलते हैं, जिस तरह से नेशनल हैंडलूम चलता है, उस तरह से आपको चलना है। तो उन्होंने ये एग्री करने के लिए मना कर दिया, तो इसलिए हमने स्टॉप कर दिया उनको कि अभी आपकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर पता चला, यही कंसेप्ट की वजह से उनको नहीं दिया है अभी तक। तो जीडीपी रेशियो जो है वो हमारी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ही बनाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं विच आर द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। यस, फर्स्ट आता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, एंड टर्शियरी सेक्टर। अब टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है क्योंकि ये सर्विस ही करता है पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती है, तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में आएगा एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड अदर रॉ मटेरियल, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर हम फूड क्रॉप्स की बात करते हैं तो वेजिटेबल्स एंड फूड क्रॉप्स ग्रो होते हैं, उसके साथ साथ में कुछ रॉ मटेरियल्स भी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, वो आएगा। यस, डेयरी, फार्मिंग तो इसमें आ गया। ठीक है, फिर पोल्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री है ना, रियरिंग ऑफ कैटल, कैटल रियरिंग। ठीक है, फॉरेस्ट्री, चलो, और फिशिंग, चलो फिशिंग नहीं लिखते हैं, थोड़ी कमर्शियल लैंग्वेज लिखते हैं। क्या लिखेंगे कमर्शियल लैंग्वेज में? फिशरी, नहीं, पिसिकल्चर। ठीक है, सेरिकल्चर भी आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है ना, पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, हो सकता है ना। ठीक है, पता है इसका मतलब क्या होता है? हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? विच आर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। नहीं पता है? हॉर्टिकल्चर का मतलब है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम लोग ग्रो करते हैं तो वो पूरा हॉर्टिकल्चर बोला जाता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बोले जाते हैं। ठीक है, पिसिकल्चर क्या होता है? अभी तुम लोग बोले थे। फिशिंग। यस, एग्जैक्ट, फिशरीज। फिशरीज इज नोन एज पिसिकल्चर। ठीक है, फिर सेरिकल्चर मतलब सिल्क, सिल्क वॉर्म से सिल्क बनता है। सोचो सोचो। सर सिल्क बाय अर्थवॉर्म, सिल्क। यस यस, क्या?
नहीं, वो तो बी हाई होता है, वो भी आएगा इसके अंदर, बी, रियरिंग ऑफ बीज। उसको बोलते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, जिससे सिल्क बनता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में है, और यहाँ से बाहर निकलोगे तो कोई ऐसा नहीं पूछेगा फिशरीज कहाँ है, वो पूछेंगे पीसी कल्चर बताओ डेफिनेशन। ठीक है, हॉर्टिकल्चर बताओ डेफिनेशन। तो कितने कल्चर है हमारी फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर में? सबसे पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर। सर 5। ठीक है, क्लियर, पता चला? तो ये सारी चीजें सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में आती है, और आज तक तो हम लोग यही सोच रहे थे कि एग्रीकल्चर ही आता है। यस, पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्मिंग मतलब वो हेंस को रखते हैं ना, एग्स ले करते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर में रखते हैं, उसको सेटल होने देते हैं, उसके बाद में फिर वो बेचते हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, फिर एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि कैटल रियरिंग होती है। तो कैटल रियरिंग में क्या क्या चीजें होती है? वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे प्राइमरी सेक्टर में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर का। तो सेकेंडरी सेक्टर में एकमात्र एक ही चीज आएगी, क्या? इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब कि इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज के अंदर क्या, कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? तो कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन इंडस्ट्री। जूट टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल। ठीक है, फिर केमिकल फर्टिलाइजर की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फिर केमिकल इंडस्ट्रीज, फिर मेटल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कब बनी थी? अच्छा, किसने बनाई थी? वो तो पता ही होना चाहिए। ये तो मस्त है, ये तो पता ही होना चाहिए, जिसकी वजह से वो बंदा फेमस है, जिसके टाटा। वजह से एक गांव बन गया पूरा। यस, जमशेदपुर। और किन्होंने बनाई थी? जमशेद जी टाटा। टाटा। ठीक है, हाँ, जमशेद जी टाटा, जिसके वजह से टाटा फेमस है इतना। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड टू बी द इंडस्ट्रियलिस्ट, नंबर 1 इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और उन्होंने जो बनाई थी सबसे पहली इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं टिस्को, इन 1907। टाटा 1907 में आयरन टिस्को, एंड स्टील टाटा कंपनी। आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ये सबसे पहली इंडस्ट्री है आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन केम टू इंडिया। यस, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब इंडिया के अंदर आया तो सबसे पहली इंडस्ट्री बनी थी 1907 में, जब हम इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए थे, उस टाइम पे बनी थी ये 1907 में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, और उसके बाद में फिर इनिशिएशन शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, कि उसके बाद में कई सारी कॉटन मिल्स बनी, कॉटन टेक्सटाइल बनी, जूट टेक्सटाइल बनी, वुलन टेक्सटाइल बनी, जहां पे जिस तरह की फेवरेबल कंडीशन है उस तरह की यहाँ पे वो लोग बनाते गए। फिर डाइज एंड डाइज इंटरमीडिएट, पता है ये क्या है? पहले एक टाइम था जब इंडिगो ग्रो होता था, अभी इंडिगो ग्रो नहीं होते। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक कलर्स आ गए हैं, और वही सिंथेटिक कलर्स मेकिंग जो कंपनीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, उसको बोलते हैं डाइज एंड डाइज इंटरमीडिएट। हम सब लोग ने कपड़े पहने हैं, वो एक्चुअली जब बनते हैं तब व्हाइट कलर के होते हैं, उसके ऊपर डाई की जाती है, प्रिंट की जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये अलग अलग कलर के होते हैं, ताकि इनिशियली ये जब मेकिंग प्रोसेस होती है टी शर्ट की या शर्ट की या टॉप की या जीन्स या पैंट की, तो वो उस टाइम पे सिर्फ एक ही सिंगल कलर के होते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर प्रिंट करी जाती है, फिर डाई करी जाती है, अलग अलग कलर्स में उसको डिफाइन किया जाता है, उसके बाद में फिर वो फाइनल प्रोडक्ट होके वो बाहर निकलती है मार्केट में। क्लियर? तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज जो कि
रॉ मटेरियल्स जो है उसको प्रोड्यूस करती है और फाइनलाइज प्रोडक्ट गुड्स बनाने के बाद उसको मार्केट के अंदर डालती है, जिसको हम बोलते हैं पूरा हमारा सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर की। ठीक है, तो टर्शियरी सेक्टर में तो सारी की सारी सर्विसेज जो हम लोग अवेल करते हैं, ठीक बेसिक है, सर्विसेज। चाहे वो गवर्नमेंट के पास से हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज के पास से हो, एक इंडिविजुअल के पास से हो, ठीक है, जो हम सर्विसेज अवेल करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, आप लोग अवेल कर रहे हो, तो इट इज अ सर्विस सेक्टर। ठीक है, फिर अगर मान लो आप यहाँ से बाहर निकल के बड़े से बिजनेसमैन बन गए, क्लोथ मेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हो या तो ओन करते हो, आप क्लोथ बना के मार्केट में बेच रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस इज अ सर्विस सेक्टर। ठीक है, यहां से आपको कोई जगह पे जाना है, चलो बढ़िया सा मौसम है, ऊपर नॉर्थ में घूम के आते हैं, मनाली, शिमला, कुल्लू, डेलाउडी। ठीक है, तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आप अवेल कर रहे हो, या तो कार में जाओगे, या तो बाई बस जाओगे, या तो फिर प्लेन से जाओगे, या तो फिर रेलवे से जाओगे, तो दिस आर सर्विसेज। ठीक है, तो वो भी आता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। ठीक है, अच्छा, एक ये फार्मर जो है वो रॉ मटेरियल बना रहा है, अब वो रॉ मटेरियल को उसको इंडस्ट्री वालों को बेचना है, उसने बेच दिया। ठीक है, पर यहां से रॉ मटेरियल यहाँ पे जाएगा तो सबसे पहले क्या लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, पेड। अच्छा, बेचने के लिए सबसे पहले तो कम्युनिकेशन चाहिए, फोन करना पड़ेगा ना इंडस्ट्री वालों को कि भाई मैंने ये कॉटन बनाया है, कोई बेच लेके जाओ इसको और पैसे दे दो मुझे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सर्विसेज, तो वो भी सारी चीजें, वो भी एक टाइप की सर्विस है, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, मैसेज देने के लिए, हाँ वो कम्युनिकेशन आ गया ना, उसके अंदर कम्युनिकेशन के अंदर आ गया। ओके, फिर और क्या था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, फिर एग्जैक्टली बैंकिंग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो तो भूल ही गए हम लोग। पैसे अगर किसी से लेंगे, 10 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए होंगे तो चलेंगे, 50,000 होंगे तो चलेंगे, जेब में आ जाएंगे, पर 5 करोड़ रुपए होंगे तो जेब में थोड़ी लेके घूमेंगे, कहाँ डालेंगे, बैंक में। बैंक क्या करती है, हमारे पास से पैसा लेती है और हमको इन रिटर्न कुछ इंटरेस्ट देके साल में हमको वापस देती है, या तो कभी भी हमको जरूरत पड़ती है तो फिर वो हमें दे देती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था बैंकिंग का। तो बैंकिंग इज अ टाइप ऑफ सर्विस जो हम लोग अवेल करते हैं मार्केट से। ठीक है, अब उसमें भी काफी सारी बैंक है, नेशनलाइज बैंक भी है, गवर्नमेंट बैंक भी है, प्राइवेट बैंक भी है। तो सारी की सारी जो भी सर्विसेज हमको, जो प्राइवेट बैंक है तो वो हमको ज्यादा सर्विसेज देती है, सामने हम अपने से ज्यादा पैसा मांगती है। ठीक है, गवर्नमेंट बैंक होगी तो धक्के में सर्विस देगी। ठीक है, आधे काम नहीं था, काले आओ जाओ। ठीक है, या तो 10 नंबर पे चले जाओ फॉर्म साइन करने के लिए, 4 नंबर पे आ जाओ, 10 नंबर वाला बोलेगा 4 नंबर पे चले जाओ, तो बेचारा थके हाल 4 नंबर पे आएगा, अरे यार आप कहाँ यहाँ आ गए, आप वो बंदा तो आज तो छुट्टी पे है, कल आना है आप, कल। ठीक है, तो ये कंसेप्ट, तो ये सारी चीजें जो है जो सर्विस हमको देती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्विस सेक्टर। ठीक है, अब ये तीनों जो सेक्टर है, प्राइमरी गिन लो या सेकेंडरी गिन लो या टर्शियरी गिन लो या सर्विस गिन लो, ठीक है, ये तीनों के तीनों सेक्टर जो है वो इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है। मतलब इसमें से मान लो कोई भी एक सेक्टर ना हो तो हम लोग नहीं कमा पाएंगे। अब कैसे, जैसे कि मान लो सर्विस सेक्टर नहीं है, ठीक है, तो एक फार्मर जो है उसको कितना लॉस है कि वो प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद में वो फाइनलाइज करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि किसी फार्मर ने वीट ग्रो की है, उसने हार्वेस्ट कर दिए, हार्वेस्ट करके उसने पैक वैक सब कुछ, पैक वैक सब कुछ कर दिया। ठीक है, अब उसको लेने वाला कोई है ही नहीं, क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन सर्विसेज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। ठीक है, तो वो तो उसके घर पे ही पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, या मतलब उसको जितना यूज करना वो कर पाएगा, मतलब टन्स एंड टन्स ऑफ फूड ग्रेन थोड़ी वो यूज करेगा घर पे, वैसे तो पड़े ही रहेंगे वहां पे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं है हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है,
सबसे बड़ी चीज बैंकिंग नहीं है तो पैसे भी नहीं आएंगे, फिर तो बार्टर सिस्टम ही चलेगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र ठीक है, मतलब तुम मुझे मिल्क दो, मैं तुम्हें क्रॉप दूंगा तो यही चीज जो है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक सेक्टर अगर नहीं होता तो ये पूरा सेक्टर जो है इंडियन इकोनॉमी का वो फुलफिल नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए इस तीनों के तीनों सेक्टर्स को इंटरडिपेंडेंट बोला गया है। मतलब तीनों के तीनों सेक्टर जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर ये है तो ये होगा, अगर ये है तो ये होगा। यस, हाँ, टूरिज्म भी इसमें ही आता है क्योंकि वो लोग सर्विसेज देते हैं ना। अजय मोदी सर्विस देता है, हम अजय मोदी को पैसे देते हैं, फिर अजय मोदी बैंक में डालता है। ठीक है, फिर वो बैंक जो है वो मार्केट में डालती है और मार्केट से वो कमाती है और हमको देती है। ठीक है, तो वो सब इंटर रिलेशन में है। क्लियर, पता चला इतना? ओके, यस सर। चलो थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। मैं पढ़ता जाता हूँ, तुम लोग टेक्स्ट बुक में देखते जाना। नोट्स मेरे पास है, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद नोट्स कलेक्ट कर लेना मेरे से, मैं दे दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, ओके। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी भेजोगे? व्हाट्सएप पे, मतलब मैं यहाँ पे साक्षी मैम को दे दूंगा, वो लोग तुम लोगों को फैसिलिटेट कर देंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। The activities which are conducted with the objective to earn money are called economic activities। मतलब दो टाइप की एक्टिविटीज होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं कि कमाने के पर्पज से कुछ चीज की है, कमाने के पर्पज से कुछ चीज हमने की है या कोई काम हमने किया है तो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। मॉनेटरी गेन के लिए कुछ भी चीज की हो, जैसे कि मैंने पढ़ा है मॉनेटरी गेन के लिए पढ़ा है। ठीक है, पता चला? तो हाँ, मार्केट में आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो जो तो वो लोग क्या इकोनॉमिक में करते हैं? ऐड होता है मनी, उसी को बोलते हैं ना इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या क्या? जो मनी इकोनॉमिक में ऐड होता हो, मतलब हेल्प करे इंडियन इकोनॉमी में। हाँ, वो कंसेप्ट भी देखा जा सकता है, पर एक्चुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी का कंसेप्ट ये है कि कमाने के लिए कुछ भी तुम लोग करो तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो सोशल सर्विस होती है जिसमें कमाने की भावना नहीं होती, मॉनेटरी गेन का कोई पर्पज ही नहीं होता है, जैसे कि कोई एनजीओ चलती है, एनजीओ क्या करते हैं, बस ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा कर देते हैं। ठीक है, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेशन में भी फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, रियरिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय मदर, तो इट इज ऑल्सो अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन मम्मी अपने को इकोनॉमिक। रखती है, ठीक है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, तो अपने पास पैसा मांगती है? नहीं मांगती है। पापा अपने पास पैसे मांगते हैं? नहीं मांगते। तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पीपल इन इंडिया आर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत काफी सारे लोग जो है वो जुड़े हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज एक्टिविटीज प्रोड्यूस गुड्स एंड अदर प्रोड्यूस सर्विसेज। अब उसमें से कुछ जो डिपार्टमेंट है, कुछ जो सर्विसेज है, ठीक है, सेक्टर है, वो क्या करते हैं? गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ क्या करते हैं? सर्विस देते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी है जो प्रोड्यूस भी करते हैं और सर्विस भी देते हैं, जैसे कि एसी वाले अपने प्रोड्यूस भी करते हैं और वही तो वही सर्विस देते हैं। ठीक है, some of these activities produce goods and other produce services. Activities are classified in various groups according to their common attributes which are known as sectors। और वही सारी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग इनको सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे कि सर्विस के लिए टर्शियरी, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेकेंडरी, और प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर, ठीक है, प्राइमरी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इन 3 ways: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। एक तो ये कंसेप्ट हुआ, दूसरा हुआ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, वो भी आगे पढ़ने में आएगा। और तीसरा है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो भी चीज आपको देगा वो पब्लिक के लिए होगा। हालांकि ऐसा बोला गया डेमोक्रेसी है, मतलब वी पीपल इलेक्ट अवर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो पब्लिक ने ही रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है, तो कुर्सी भी पब्लिक की हुई, तो भाई आप क्यों बैठे हो? सही बात है ना?
तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दो टाइप के सेक्टर होते हैं इंडिया के अंदर है। बाकी कई सारी कंट्रीज ऐसी है जैसे कि चाइना, वहां पे गवर्नमेंट सेक्टर ही होता है क्योंकि वहां पे कम्युनिज्म है, ठीक है। जहाँ पे डिक्टेटरशिप होगा, कम्युनिज्म होगा, तो वहां पे एक ही सेक्टर होगा, वो गवर्नमेंट, बस पब्लिक सेक्टर। वहाँ प्राइवेट सेक्टर का कोई नामो निशान नहीं होगा। और जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ही सब कुछ करता होगा, तो ऐसा तो कोई स्टेट नहीं है कि एक नेशन नहीं है कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ही सब कुछ करता है। पर बीच में आया था कि ये शायद हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए, पर इट वॉज नॉट फिजिबल। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का कंसेप्ट क्या है? प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू प्राइमरी प्रोडक्ट्स। कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी चीजें हम लोग यूज करते हैं? सॉइल यूज करते हैं सबसे पहले, वो भी नेचुरल है। फिर एयर यूज करते हैं, वो भी नेचुरल है। वाटर यूज करते हैं, वो भी नेचुरल है। तो इतनी सारी नेचुरल चीजें यूज करने के बाद हम जो भी प्राइमरी प्रोडक्ट बनाते हैं, छोटी से छोटी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर दिस इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस। माइनिंग का मतलब कोल माइनिंग, सही है। हाँ, नीचे से ऐसे खोद खोद के फिर हम निकालते हैं, ठीक है। मिनरल्स को भी निकालते हैं, ओर्स को भी निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या बोलेंगे? माइनिंग। These activities are directly associated with nature, मतलब ये सारी एक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली एसोसिएट करता है नेचर को, मतलब नेचर ही यूज कर रहे हैं, यही बोल सकते हैं। Example, for the cultivation of cotton, we depend mainly on natural factors like rainfall, sunshine and climate. एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या चीज चाहिए? रेनफॉल चाहिए, सनशाइन चाहिए और क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा रेनफॉल हो गया तो वो भी नुकसान है, अगर कम रेनफॉल हुआ तो भी नुकसान है, ठीक है। In dairy, we depend on the biological process of the animals and availability of fodder. अब डेयरी में क्या होता है? बायोलॉजिकल, ठीक है। साथ साथ में अगर उनको खाना नहीं देंगे तो वो दूध नहीं देंगे, फॉडर चाहिए। फॉडर मतलब ग्रास, ठीक है। फॉर मिनरल्स एंड ओर्स वी डिपेंड अपॉन माइंस। मिनरल्स और ओर्स के लिए हम लोग माइंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब माइंस खोद के हम लोग निकालते हैं उसके अंदर से, और वो जो निकालते हैं वो भी नेचुरल है। वो तो हम तो बनाते नहीं है, मिनरल्स और ओर्स हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नेचर ही बनाता है। Since most of the natural products are obtained from agriculture, dairy, fishing, forestry, etc., it is called the agriculture and related sector. मैंने पहले ही बताया था, क्या बोलते हैं उसको कि नेचर के साथ हम लोग एसोसिएशन में है, इसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ साथ काफी सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व है। क्लियर? पता सर चला? माइनिंग, सर माइनिंग माइनिंग क्या? प्राइमरी सेक्टर में आता है क्या? हाँ, माइनिंग प्राइमरी सेक्टर में आता है। सर कैसे, आप समझाओगे एक बार? माइनिंग मतलब हम नेचर को माइन जो होती है उसको पहले खोदना पड़ता है, और उसके हाँ। अंदर से जो भी प्रोडक्ट निकलती है तो वो तो नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है। उसमें आर्टिफिशियलिटी तो कुछ होती ही नहीं है। आर्टिफिशियल तो सिर्फ यही चीज है कि हम लोग उसको खोद के निकालते हैं, बाकी हमने प्रोडक्शन थोड़ी किया है इसके अंदर। तो अगर वो नेचर से एसोसिएटेड है तो वो प्राइमरी सेक्टर में गिना जाएगा, और वही चीज को यूज करके हम कुछ ना कुछ बनाते हैं जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा। इसी की वजह से माइनिंग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। चलो फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाय सर। बाय।